can write down the cheesecake recipe, and if no one is going to note it, you can follow to the Bakers Village page after 3 days, because I'm going to update this recipe on the Bakers Village Facebook page. So you can collect the recipe from there also, or from a Bake India Bake. We will share your recipe. We will share the recipe to Bake India Bake also. You can collect from them also, or you can follow to the Bakers Village Facebook page. We can also update the recipe over there. So as long as my baked cheesecake, we are not going to use any eggs in this. Again, here the egg replacer is WPC and veg gelatine. We are not going to use any egg whites or any eggs. We are going to use WPC 80 and veg gelatine. You can write down the recipe. Cream cheese 500 gram. You can take any cream cheese, either Philadelphia or mascarpone or Delecta. Whatever cream cheese you get, you can take it a cream cheese. Or you can make at home also. Cream cheese. Put your cream, Amul cream in the freezer. When it gets separation, remove the water part from there. Like an example, if you are using 2 packets, take it 2 packets, put in the freezer, remove the water part, and when the solid part is remaining at the bottom, remove that and put in another bowl, put some curd and keep it overnight for fermentation. Once it gets fermentation, you can use as a substitute of cream cheese. That's one. When you're taking an Amul cream, so when you put in Amul cream in a deep freezer or some high temperature, the water and the solid will get separation. So when it gets separation, remove the water part, throw it away, or you can use in your chapati or your rice. The solid part, it will remain. You collect in another bowl, put some amount of curd in that, and make a fermentation overnight. Once you get fermentation, your cream cheese is ready. You can use it as a substitute of cream cheese. Pardon me? Just to get fermentation, just a little bit, you will require approximately tablespoon or 2 tablespoons. Basically, when these people they are making, this is for the cheesecake. For the base, you will require 300 gram shortcrust pastry or Marie biscuits or leftover biscuit at your home. आप कभी बेकरी से कोई बिस्किट लेके आते हैं या घर में कोई बिस्किट बच गया, उसका पूरा क्रम्स करके आप यूज कर सकते हैं. कोई जरूरत नहीं आपको नया बिस्किट लेने के लिए. अगर नहीं है तो आप मारी बिस्किट यूज कर सकते हैं. 300 ग्राम, 150 ग्राम अमूल बटर, 150 ग्राम अमूल बटर and approximately 40 ग्राम लिक्विड जीरो शुगर. मेरे चार्ज लगा. आपका अमूल बटर इज 40 ग्राम लिक्विड जीरो शुगर. अगर आपके पास लिक्विड जीरो शुगर नहीं है, नो प्रॉब्लम. आप अगर पेशेंट नहीं है, आपको शुगर खाना ही है, कोई जरूरत नहीं. आप हनी भी डाल सकते हैं, आप पीनट सिरप डाल सकते हैं, आप डेट सिरप डाल सकते हैं. जो भी आपके पास सिरप है वो आप डाल सकते हैं. आप कौन सिरप डाल सकते हैं? ये सारी बिस्किट को इसके 2 मेथड से, 2 मेथड ये है कि अगर ये बिस्किट को अगर मैं कट करूँगा अभी तो ये क्रम्बी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्रम्स को मिक्स करके हल्का सा ओवन में बेक कर दिया है, ताकि वो अच्छे से सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा. जब मैं चीज़ के गरम भी काटूंगा तो वो बिखरेगा नहीं. अदरवाइज आपका चीज़ केक जो है वो आपको चिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्लाइस कर सकते हैं. अगर आप चिल्ड नहीं करोगे तो वो क्रम्स बिखर जाएगा. तो इसीलिए क्या किया मैंने, ये सारा मिक्स करके मैंने मोल्ड के अंदर प्रेस करके उसको हल्का सा ओवन में बेक कर दिया, ताकि वो क्रम्स बिखरेगा नहीं. यहाँ पर हमारे शेफ जो है वो सारी सामग्री जो है क्रीम चीज, कैस्टर शुगर और जीरो शुगर, he has been mixed with all these things. He will going to melt it properly. Then he is going to add cream and WPC, cornstarch, vegetable gelatin. ये सारा ऐड करने के बाद में आपको कोई फ्लेवर में चाहिए भाई, इसमें अच्छा सा टैंगी फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो आप आधा लेमन जूस डाल सकते हैं या 1 लेमन जूस डाल सकते हैं. और लेमन का जो रिंड होता है, नॉट अ वाइट पार्ट, येलो पार्ट जो भी रहेगा उतना आप सब डाल सकते हैं, ताकि उससे अच्छा से ऑरेंज का फ्लेवर आपको मिले. बिकॉज माई फेवरेट इज ऑरेंज और लेमन इज माई फेवरेट टैंगी.
और इतनी गर्मी के अंदर वो बहुत अच्छा लगता है। और अब जब चीज़ केक बनाएंगे इतना गर्म के लिए, मतलब इतना कलकत्ता का टेम्परेचर जो 45 डिग्री है, उसके अंदर अगर ऑरेंज बनाएंगे, लेमन बनाएंगे, लीची फ्लेवर बनाएंगे, तो ये फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा अपीलिंग है। गर्मी के अंदर तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो आप लीची फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको बेक करने के लिए हमेशा स्टीम बेकिंग है। स्टीम बेकिंग मीन्स एक बाउल के अंदर आपको पानी रखना है हल्का सा, और फिर उसके अंदर रख के उसको बेक करना है। Temperature will be approximately 170, 180, and it will take approximately 35 to 40 minutes to bake. Both the rods. Always when you are using OTG में आप जब भी कोई भी ओवन यूज करेंगे केक बनाने के लिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डबल रॉड चालू करना चाहिए या सिंगल रॉड। सिंगल रॉड इज जस्ट फॉर रोस्टिंग, making a tikka like paneer tikka, chicken tikka. But when you are using cakes, then both the rod has to be on. ओवन का बहुत सारा टेक्निक्स है, तो वो ओवन का जो टेक्निक्स है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। हर ओवन का अलग अलग टेक्निक्स है और उसको समझ लेने का बहुत जरूरी है। पाउडर में आप पूछिए, उतना नॉलेज दूंगा मैं। आप पूछेंगे नहीं, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं छुपा के वापस लेके जाऊंगा। देखो, आपका ओवन अगर फुल हीट करने के बाद भी अगर टेम्परेचर नहीं देता है तो उसमें रीजन है आपका ओवन का जो नॉब होता है ना, एक नॉब में आप टेम्परेचर सेटिंग करते हैं, वो टेम्परेचर को सेटिंग करके उसको देखेगा, उसमें एक आवाज़ आता है, कट कट आवाज़ आता है। अगर ये आवाज़ नहीं आएगा तो आपको थर्मोस्टेट इसको बोलते हैं, वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द कंट्रोल टू हीट। तो इफ योर थर्मोस्टेट इज नॉट वर्किंग ऑल्सो इट विल नॉट शो यू प्रॉपरली। बाद में आपके जो अंदर के कॉइल्स होते हैं, अगर वो कॉइल भी जल गया होगा तो आपको हीट बरोबर नहीं बताएगा, तो वो आपका इलेक्ट्रिशियन से एक बार चेक करवाना पड़ेगा विद अ कंटिन्यूटी टेस्टर, वो आप करवाना पड़ेगा। And cream what you are using is 25% fat content. अगर आपको 35% fat content का cream मिलता है, much better. Amul fresh cream. नहीं, Amul is 25. Only Allen oil is 45 to 25. Yes, please. कितना टाइम तक ये यूज कर सकते हैं? आप इसको क्लीन रख करके फ्रिज में रख दो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज है ना, मेरा क्लास में हमेशा बोलता है, लोग बोलते हैं कि मेरा घर का फ्रिज हमेशा सेफ है। आपका घर का फ्रिज जो है ना, हमेशा आप सोचते हैं कि सेफ है, मगर मेरा नजदीक मेरा घर का फ्रिज भी आपका घर का फ्रिज भी सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड प्लेस है। क्योंकि मेरा घर जो है ना, मैं रोज साफ करता है, फ्रिज रोज साफ नहीं करते, और जितना बाजार से लेके आके फ्रिज में डंप करते हैं, तो फ्रिज इज कंटामिनेटेड प्लेस। तो आप सोचेंगे फ्रिज अच्छा है, मैं फ्रिज में रखेगा तो सेफ रहेगा, नो। सो व्हेनेवर इफ यू आर पुटिंग इन द फ्रिज, क्लीन रैप इट प्रॉपर्ली, देन यू पुट इन द फ्रिज। स्टोर तभी करो ताकि आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा, आपका फ्रिज का बंदर तो नहीं रहेगा। Yes, any doubt please? हाँ, अभी बेसिकली कैसा होता है, हांग कट आप जैसे बता रहे हो, तो हांग कट में कैसा होता है, आपका यहाँ पर मिष्टी दही बोलते हैं ना, तो जब तक आप मिष्टी दही को अच्छा से कटर्स मिल गए सब नहीं डालेंगे तो बनेगा नहीं। हांग कट क्या होता है, ज़्यादा साफ होता है और फैट कंटेंट कम होता है। अगर आप क्रीम चीज लेते हैं, सपोज जैसा मैंने आपको बोला कि 2 पैकेट अगर आप लेते हैं, and if you say the 25%, and it come to 50%, then it is the fat content is going higher, 50% के आसपास जाता है फैट कंटेंट, तो वो फैट कंटेंट होना चाहिए। दही में वो फैट कंटेंट नहीं है, क्रीम चीज में वो फैट कंटेंट है, तो डिफरेंट नहीं है। यू कैन सी, कोई टेस्ट करना चाहेगा इसको पहला? Anyone like to taste this raw? Anyway, no problem. तो ये हमारा जो बैटर है ये रेडी हो गया। अभी आप जो है ये बैटर बहुत इजी केक्स है, इसको आप जो है
फ्लैट केक भी बना सकते हैं, आप शॉर्टकट बिस्किट बना के भी बना सकते हैं, नहीं तो फ्लोरेंटाइन करके आता है जो फ्रेंच बिस्किट बोलते हैं। फ्रेंच बिस्किट को चॉकलेट के साथ मिक्स करने का और फिर बेस में डालने का और फिर उसको ओवन फ्री में सेट करके बाद में चीज़ केक डाल के बेक करने का और फिर फ्रिज में रखेगा, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फ्लोरेंटाइन फ्रेंच बिस्किट, अगर फ्रेंच बिस्किट नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, आइसक्रीम को लेने का हार्ड वाला शुगर को उसको क्रम्स करने का, उसके अंदर बटर मिलाने का, नहीं तो चॉकलेट मिलाने का, खाली चॉकलेट मिला के उसको ऐसा मोल्ड के नीचे रखने का एंड देन पुट इन द फ्रिज। बाद में उसके बाद चीज़ केक डाल के उसको बेक करने का, जब वो चिल्ड हो जाएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास स्प्रिंग मोल्ड है, इसके लिए लूज बॉटल मोल्ड आता है, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो इस तरह भी आप मैनेज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप अलग से मोल्ड खरीदने का। यस बिल्कुल, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं उसको रिपीट करूँ, पहले पूरा रेसिपी रिपीट करूँ मैं। हाँ ले लो। मैडम सोचते हैं कि मैं कुछ और रेसिपी दिया, मुझमें कुछ और रेसिपी लिखे, इसके लिए तो ऐसा है ना, आप ही ले लो, आप ही रह जाओगे। मैं मजाक कर, हमारा मजाक करने का आदत है ना। बहुत बिस्किट का बटर यूज किया है हमने, थोड़ा सा जीरो शुगर यूज किया है, लिक्विड हाँ शुगर फ्री। अगर आप नहीं, अगर आप जीरो शुगर नहीं आपके पास, आप हनी यूज कर सकते हैं, आप डेट सिरप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा वो बाइंडिंग रहेगा फ्रिज में डालने के बाद। आई एम नॉट गोइंग टू फिल कम्प्लीटली बिकॉज मेरा चीज़ केक जो है ना वो जितना थोड़ा सा आपको रहना चाहिए, 1.5 इंच का जितना रहना चाहिए, ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। सो आपके पास अगर बैटर बचता है तो आप थोड़ा सा रख दो मफिन्स मोल्ड में या दूध बॉटल मोल्ड रहेगा, उसमें इंडिविजुअल बेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप उसको पूरा मोल्ड में डाल के बेक मत करो, उसको थोड़ा सा यस बस। विदाउट बेकिंग करना चाहते हैं तो उसका रेसिपी विद वेज जेलेटिन इज डिफरेंट। नाउ विदाउट बेकिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो विद द सेम रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आपको मिल्क, क्रीम और वेज जेलेटिन, शुगर ये सब को एक साथ मिक्स करना है, इसको बॉईल करना है। बॉईल गरम में ही आपको क्रीम चीज डालना है, क्रीम चीज डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है और जब भी वो गर्म रहेगा तभी मोल्ड में फिल कर दो और मोल्ड में फिल करके फ्रिज में सेट कर दो, आपका चीज केक रेडी हो जाएगा, कोल्ड चीज केक। सो द रेसिपी विल बी रिवर्स। यहाँ पर हमने पूरा एक साथ so you can follow the same recipe for baked cheesecake as well as for cold cheesecake. सेम फॉलो करना है, इसको खाली आपको जैसे शुगर, अमूल मिल्क, अमूल क्रीम, वेज जेलेटिन, इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसमें कॉर्नस्टार्च जो है वो थोड़ा सा पानी में डाल के उसको वापस से डाल दो कॉर्नस्टार्च भी, और फिर इसको अंदर बीट करो तो हल्का सा कस्टर्ड की जैसा होएगा। हाँ, बॉईल वाला मिक्सर में डालो और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठीक होने लग जाएगा उसी टाइम पे क्रीम चीज डालो, और क्रीम चीज डालेगा तभी भी वो हॉट रहना चाहिए। No, double water, direct fry. और जब ये आपका हो गया उसके बाद अगर कोल्ड चीज केक बना रहे हैं तो नो नीड ऑफ बिस्किट क्रश, उसमें आप स्पॉन्ज केक भी ले सकते हैं।
नीचे बेस में आप स्पॉन्ज केक में ऊपर पोर कर सकते हो उसको। अगर बिस्किट बेस लेना नहीं चाहते आप बिस्किट बेस मत लीजिए। अगर आपको शॉर्ट क्रस्ट चाहिए आप शॉर्ट क्रस्ट लीजिए। इफ़ यू वांट जैक पेस्ट्री यू कैन यूज जैक पेस्ट्री, यू कैन यूज आलमंड स्पॉन्ज। तो ये सारा कुछ हाँ यस यस। अभी इसको मैंने चेंज नहीं किया है। आई नीड टू चेंज 3 hours एटलीस्ट इन द फ्रिज टू डिमोल्ड एंड कट, बिकॉज जब डिमोल्ड आप करने के लिए उसको अच्छे से हाइड्रेट होना चाहिए, कूल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सेट होएगा। 3 hours एटलीस्ट 3 hours बिफोर कटिंग इनटू पोर्शन। 70 for at least 35 to 45 minutes। इसको टेस्ट करना है, आप स्पून नहीं है तो आप टेस्ट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट है। दिस आई एम गोइंग टू गिव अ टेस्ट, बट मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ ये चेंज नहीं किया है मैंने। मे बी इट इज नॉट सेट, मे बी इट इज लिटिल बिट क्रीमी, तो ये आप प्लीज डोंट माइंड। एटलीस्ट यू हैव टू कीप 3 hours इन द फ्रिज बिफोर इट सर्विंग। और आप इसको जो है इसके ऊपर blueberry fillings, you can use this type of fillings, you can use blueberry fillings or strawberry crush to get that flavor। आप कभी गैस को देखते हैं पोर्शन कट करके उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के दे दो तो वो ड्रिप भी होगा और अच्छा लगता है। You can come to the food stalls. We have Kumkum's Cake House. We have Drips and Drizzle. They have amazing baked goodies. You can come and try them. And moving towards the gate, we have 2 more food stalls. One of them is Cake Take. They have cakes, baked goodies, tea cakes, cookies, So we will keep in the brownies, fridge somewhere else etc. over here. You must come and try. Not available, fridge is not available in this। बीट तो थोड़ा करना है। Bake 35 minutes, 35 to 40 minutes। We already baked it। Oh, amazing. पेज कैसा बना कैसा नहीं बना, और आप जब भी इसको बनाएंगे बनाने से पहले आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। बेक करने के बाद बजाने के बाद रिपोर्ट करना कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। बेक होने के बाद सब कुछ, बेक होने के पहले सब कुछ हो सकता है। और आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप काउंटर पे आके क्लियर कर सकते हैं।